we expose Delhi's toxic tap water. What you see right now here in Namdhari colony is sewer mix contaminated water that is being provided by the direct pipeline of the Delhi Jal Board. One smell of this water and it stinks of sewerage. Your voice on our platform. लोग हमसे वोट्स मांगने आते हो और जब हमको जरूरत है कहाँ आते हो, किधर हो आप लोग? Where are you? जर्म्स हैं, इतनी ज़्यादा स्मेल है, बहुत ज़्यादा, और वो भी वैसे मिट्टी वाला पानी नहीं है ना, ये नाले वाला पानी है। पानी चलाते ही पूरे घर में बदबू हो जाती है। A campaign that could not be ignored. हवा तो खराब थी ही, but now the right to clean drinking water is also something that we have to fight for on an everyday basis. Outrage that forced the government to lay new pipelines. Delhi's water SOS has resulted in an India Today impact. What happened in Indore triggered serious fears that the same tragedy could repeat elsewhere. Delhi is one of the several cities which is grappling with that very high risk. While officials repeatedly claim that capital's water was safe, India Today went where no one else did, to the ground, into the homes and to the taps, supplying that water which people are expected to drink. Mixed with sewage, has foam, stings as if it's coming out of a gutter. We were the only channel speaking directly to residents, collecting samples, showing viewers exactly what was flowing out of these government pipelines. Look at them, they can't stand the stench. From West Delhi to East Delhi, our investigation exposed a disturbing reality. Sewer-like water being supplied as drinking water, families falling sick, and citizens pleading to be heard. This was not a one-location story. This was not a one-day investigation. 2 consecutive days, our reporters visited 3 different locations, spoke to scores of residents, because this was never about one colony or about one pipeline. It pointed to a deeper, systemic problem. And today, that sustained reporting, I'm very happy to say, seems to have made a difference. After India Today's exclusive ground report, the government has now been forced to take note. Delhi's water minister has addressed the issue inside the Delhi Assembly, promising corrective action. The government says new pipelines will be laid across the capital over the next 2 to 3 years. But the larger question remains, why did it take media intervention, us pleading, filling up those water bottles, sending to the minister saying, kya aap ye piyenge, to actually get you your basic right, clean drinking water? Is that the only way the government listens now? Let's bring on our reporters who got all that coverage to us. Shreya Chatterjee joins us live now. So is Sushant Mehra. Shreya, let me come to you first. 2 days of very sustained, in fact, more for you. We showed it over 2 days of sustained coverage. And now the minister has said that there will be laying out of new pipelines that will take place. He's saying it will be completed in the next 2 to 3 years. At the moment, the plan that has been outlined, how do you see that solving the problem on ground? Well, immediately the problem won't be solved, Sonal. What we see over here is a solution that is being measured on the fact that for all these years, there was no work that's happened on the part of the previous government. Is now we will be giving solution, and we have the tendering in process. It's in advanced stage. The loans have been cleared in close to 7,000 kilometers. That's the kind of number that we've managed to get after this report was published. That is the amount of new pipeline that needs to be laid in the national capital. But we'll still have to wait for 2 to 3 years. So the question back is that for tomorrow, the next day and the days to come, people will still have to survive with sewage water like they have been for the last few months. Remember those people who joined us from Mayur Vihar yesterday, they said that they know that. And that's exactly the question, that irrespective of the fact, the wait is still 2 to 3 years long. So why don't these parties, when they seek votes, mention the same in the manifesto? Yeah, that's a fair point. Let me take that to Sushant Mehra. Sushant, आप दिल्ली सचिवालय से, इनफैक्ट दिल्ली असेंबली के आगे खड़े मैं देख सकती हूँ, और पूरे दिन वहाँ डिस्कशन चला, एक दिन का एक्सटेंशन भी हो गया असेंबली का. मुझे बताइए कि
अभी जो उन्होंने प्लान बताया है ये कितना डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वाज अर्लियर डिसाइडेड, एंड क्या अर्जेंटली क्या कुछ अरेंजमेंट नहीं करा पाए हैं दिल्ली सरकार की, एटलीस्ट वाटर टैंकर जो फिल्टर्ड वाटर है वो इन कॉलोनीज में जाएं? अब 2 साल से 3 साल तक रुक थोड़ी ना सकते रेजिडेंट्स। देखिए सोनल, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस पूरे मामले के अंदर जो दिल्ली सरकार के जल मंत्री है प्रवेश वर्मा की तरफ से विधानसभा के अंदर पूरी डिटेल के साथ जो है वो पूरा प्लान जो है वो आगे का दिया गया। लेकिन हमारी खबर के बाद सरकार ने ये भी जाना है कि जहां पर लोगों की परेशानी है वहां पर इमीडिएट एक्शन जो है वो जल बोर्ड के अधिकारियों को बोला भी गया है कि यहाँ पर पानी की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व जो है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। अब लेकिन ये समझना होगा 2 से 3 साल का प्रोसेस क्या है। लगभग दिल्ली में 16,000 किलोमीटर की पूरी पाइपलाइंस है, जिनमें से 5,000 किलोमीटर की जो पाइपलाइंस है वो लगभग 30 साल पुरानी है और लगभग 2 से 3,000 किलोमीटर की जो पाइपलाइंस है वो 20 से 25 साल पुरानी है। 2020 के बाद से दिल्ली में कोई भी पानी की पाइपलाइन को लेकर के टेंडर नहीं हुआ। 2021 में एक टेंडर होना था वो रद्द हो गया, 2020 में टेंडर होना था वो रद्द हो गया। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, दिल्ली सरकार का जल मंत्री का आरोप है कि उन टेंडरों में गड़बड़ी थी जिसके कारण ये टेंडर नहीं हो पा रहे थे। 5 साल बाद आज अगर देखा जाए 2025 में आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने लगभग 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें लगभग 9 विधानसभाएं कवर होती हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की और ईस्ट दिल्ली की, उनके लिए टेंडर जो है वो जारी कर दिया और लगभग ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। कई सारी विधानसभाओं में पाइपलाइन डलने का काम जो है वो शुरू हो गया। श्रेया ने कल हमें एक जो स्टोरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी नामधारी कॉलोनी से मोती नगर के अंदर, वहां पर भी जब हमने हरीश खुराना से बात करी कि वहां पे लोग पानी की पाइपलाइन और खराब पानी से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने दिखाया कि हमने नामधारी कॉलोनी को लेकर के जब हमने वादा किया था उसकी पाइपलाइन की टेंडर जो है वो जारी कर चुके हैं। फरवरी और मार्च के अंदर वो पाइपलाइन पूरी तरीके से कॉलोनी में भिज जाएगी और लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सरकार का प्रोसेस है चंद्रावल प्लांट को लेकर के, जहां पर लगभग 20 विधानसभाएं कवर होंगी, उसका भी टेंडर प्रोसेस जो है वो इसके बाद जो है वो किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेसिंग में कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लगता है, क्योंकि पाइपलाइंस भिजती है, उसको कनेक्ट किया जाता है, उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट किया जाता है। 20 लाख के आसपास की आबादी है जो कि चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का अगर पाइपलाइन चेंज होती है तो वो इसका लुफ्त जो है वो उठा पाएंगी, उनको साफ पानी मिल पाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लेगेसी के रूप में पिछली सरकार ने खासतौर पर आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई पाइपलाइन नहीं बदली, कोई सीवरेज जो है वो ठीक नहीं किया, क्योंकि पाइपलाइंस पुरानी थी, वो डैमेज थी और सीवर का पानी उनके साथ मिल करके पानी की पाइपलाइंस में जा रहा है। तो ऐसे में उनको बदलने में एक टाइम पीरियड जो है वो लगेगा, एक दिन का पॉलिटिशियंस हैं, देखिए वो तो मौका नहीं छोड़ेंगे, बट हमारा काम है उनके पीछे पड़ के सही जवाब जो है उनसे निकलवाना। I also heard that the Delhi Chief Minister is expected to address the assembly today. Around 7 o'clock we are told कि फाइनली पोल्यूशन के मुद्दे पर वो कुछ बात करने वाली हैं। क्या कुछ हमें आइडिया है कि इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन दोनों इंक्लूडेड होगा कि नहीं? देखिए सोनल, मैं बता दूं कि दिल्ली विधानसभा का जो सत्र जब शुरू हुआ था उस दिन पर ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे विधानसभा सत्र के अंदर दिल्ली सरकार खुद पोल्यूशन के मुद्दे पर जो है वो चर्चा करना चाहती है। लिस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो सामने आया, उसमें पोल्यूशन का मुद्दा था और ये जो पोल्यूशन का मुद्दा था वो आखिरी दिन जो है वो उस पर डिस्कशन होना था। लेकिन उससे पहले कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन होना था। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार अगर कहा जाए तो उस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी जो है वो बाहर निकलती हुई नजर आई, जिस पर बीजेपी उनको घेरती हुई नजर। आज मुख्यमंत्री पोल्यूशन के मुद्दे पर खुद जो है वो विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर अपना बयान जो है वो देंगे। लेकिन उससे पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर भी जो है वो अपना बयान देंगे कि सरकार ने इन 11 महीनों के अंदर क्या कुछ काम किया और पिछले 11 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कुछ काम नहीं किया था, जिसके कारण पोल्यूशन का स्तर जो है वो दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन अपनी उपलब्धियां भी जो है वो गिनाएंगी। हो सकता है कि इसमें पोल्यूशन को लेकर के चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, यमुना का पोल्यूशन हो, इन सब को लेकर के चर्चा जो है वो आज मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा के अंदर करती हुई नजर आएंगी। जी सुशांत, आप उन सारी अपडेट्स पर प्लीज़ नज़र रखिएगा, हमें अपडेट्स भेजिएगा और हम सब उसको देखते रहेंगे, इधर बताते भी रहेंगे अपने व्यूअर्स को। फॉर द मोमेंट, श्रेया एंड सुशांत, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस अप टू स्पीड विद ऑल ऑफ दैट।